dear devotees, how was that? How was that? तो प्रिय भक्तों कैसा रहा? Can you see that there is a difference when you switch off the telephone of the mind? तो क्या आप देख सकते हैं कि जब आप मन का मोबाइल फोन बंद करते हैं तो कुछ अंतर आता है? And when you are totally focused, तो जब आप पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं हरिनाम पे तो कुछ अंतर क्या अनुभव होता है आपको? definitely, isn't it? We can feel. तो निश्चित रूप से होता है. Please, when you sit down and do your japa and also for the kirtans, keep this in mind. No? तो कृपया करके आप जब भी जप के लिए बैठें या कीर्तन के लिए बैठें तो कृपया इस चीज को सदैव ध्यान में रखें. When you chant, you should know that this is now my private time with Krishna. जब भी आप हरिनाम लेते हैं, चाहे जप हो या कीर्तन हो, आप ध्यान रखिए कि आपका ये व्यक्तिगत समय है श्री कृष्ण के साथ. I would like today to talk about the 3 instructions of Chaitanya Mahaprabhu because I feel they will really help your life. तो आज मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की 3 शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा जिससे मुझे लगता है कि आप सबको अवश्य ही लाभ होगा. Krishna consciousness becomes very easy if you keep these 3 instructions in your mind. कृष्ण भक्ति बहुत आसान हो जाती है, सरल हो जाती है यदि आप अपने मन में इन 3 चीजों का ध्यान रखें. The first is nama ruchi. You should really create the conditions in your life so that it is possible for you to absorb yourself while you chant and develop a taste. तो पहला है नाम रुचि. बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी परिस्थितियों को ऐसा करें, अपने आसपास की चीजों को ऐसा करें कि जब आप हरिनाम का जप या कीर्तन कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से ध्यान लगा सकें. When the mind is distracted while you chant, it is practically impossible to develop a taste. जब हरिनाम करते हुए मन इधर-उधर भागता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो फिर हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती. So, nama ruchi. Huh? The second is Vaishnava seva. और दूसरा है नाम रुचि के बाद दूसरा है वैष्णव सेवा. And the third instruction is jivadaya, or to do something for the welfare of others. और तीसरा है जीव दया यानी दूसरों के लाभ के लिए कुछ करना. These are 3 powerful pillars on which you can establish your spiritual life. ये 3 शक्तिशाली या प्रभावशाली खंबे हैं जिन पे आप अपनी आध्यात्मिक जो भक्ति है उसको आप टिका सकते हैं. Yeah, आध्यात्मिक जीवन को. It's the 3 powerful pillars on which you can rest your. I know Hindi, by the way. You have to be very attentive. And my uncle is a teacher, so I will watch you very carefully. So 3 powerful pillars on which you rest your bhakti. तो आपकी भक्ति जो है 3 बहुत शक्तिशाली खंभों के ऊपर टिकी है. Every day, or let us think about our japa today, where we absorbed. तो हम हर रोज की या आज की भी बात करें, जब हमने जपा किया सुबह तो क्या हम उसमें पूरी तरह से डूबे हुए थे? Speaking of myself, I think that during 14 rounds, they were okay, but 2 rounds I chanted in the car. And I was under the shock of Delhi, so they were shock rounds. तो यदि मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो 14 माला तो ठीक थी, परंतु 2 माला जो मैंने गाड़ी में की तो मुझे दिल्ली में घुसने का सदमा था और बस वो ऐसे ही हुई 2 माला. So I will not count these rounds, but I will chant them, repeat them in the Radha
Pata Sharati Nandiya. तो मैं ये जो दो माला मैंने की गाड़ी में, इनको मैं गिनती नहीं करूंगा, और राधा पारसारथी मंदिर में जाके इन दो को मैं दोबारा करूंगा। Vaishnava Seva. Have you served devotees today? वैष्णव सेवा, क्या आज आपने वैष्णवों की सेवा की? What did you do for a devotee? आपने किसी भक्त के लिए आज क्या किया? You have to ask this question to you, because after all, you want 3 pillars in your bhakti. तो ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि आखिरकार आप भक्ति के 3 खंभे हैं अपने जीवन में लाना चाहते हैं। And then Jiva Daya, have you done something today for the welfare of others? Distributed a book, for instance, or something. और तीसरा जीव दया, क्या आज के दिन आपको सोचना है कि आज के दिन आपने दूसरों के लाभ के लिए कुछ भी कार्य किया? उदाहरण के लिए उसको कोई ग्रंथ दिया। These 3 pillars of bhakti encourage us to check every day our performance of bhakti. तो जो भक्ति के 3 खंभे हैं, ये हर रोज हम इसके द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को हम कैसे भक्ति कर रहे हैं उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। And very, very, very important in this is the Vaishnava Seva. और बहुत 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 महत्वपूर्ण है इसमें वैष्णव सेवा। My dear devotees, there was once in South India a great devotee called Kanchi Purnam. तो एक बार दक्षिण भारत में एक महान भक्त थे, कांचीपुरम नाम था उनका। Although he had come from a Shudra caste, he was so exalted that he was allowed to come just before the altar and pull a fan which was installed in the ceiling. तो हालांकि वो शूद्र परिवार से थे, पर इतने अच्छे भक्त थे कि उनको विशेष अनुमति दी गई थी कि वो मंदिर के अंदर आ सकते थे, और श्री भगवान के सामने जो ऊपर पंखा लगा था छत के ऊपर, उसको वो खींच सकते थे। एक रस्सी के माध्यम से उस पंखे को खींच सकते थे। Many hours a day. और दिन में कई घंटे वो ये सेवा करते थे। And during this time he used to speak to the deity. और ये सेवा करते करते वो भगवान से बात भी करते थे। The Bhagavan was called Varadaraj, the king of giving blessings. तो वरदराज भगवान का नाम है, जो कि आशीर्वाद देने के राजा हैं। And Bhagavan would talk to Kanchi Purnam, give answers to his questions. और भगवान भी इन भक्त से बातचीत करते थे, उसके प्रश्नों के उत्तर देते थे। Can you please fan a little bit more strongly? Varadaraj would say, for instance, it is a little extra hot today. तो वरदराज भगवान बोलते थे कि आज तुम थोड़ा पंखा तेज कर सकते हो, आज कुछ ज्यादा गर्मी है। And Kanchi Purnam was then fanning very strongly and said, is it ठीक? Is this good? और कांचीपुरम बहुत तेज से फिर पंखा करते थे भगवान को और पूछते थे, भगवान ठीक है, आज ठीक है, अभी ठीक लग रहा है आपको? No, said Varadaraj, now it's too strong. A little bit in the middle. तो भगवान कहते थे नहीं, अभी बहुत तेज हो गया, थोड़ा धीमा कर दो, बीच में, पहले बहुत धीरे था, अभी बहुत तेज हो गया, बीच में करो। So in this way the Lord would talk every day to his loving servant. तो इस तरह भगवान हर रोज अपने प्रेमी सेवक से बातचीत किया करते थे। One day a very old man came. एक दिन एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति आया वहां पर। He was an old Vaishnava. और वो वृद्ध था और वैष्णव था, पुराना वैष्णव था। He looked very similar like our Vaishnava here. तो हमारे यहाँ पे जो प्रभु जी बैठे हैं बिल्कुल उनकी तरह लग रहा था। ओमकार तत्व name? ओमकार तत्व प्रभु। Omkar तत्व। Om Tattva Prabhu. No? But a little older than Om Tattva Prabhu. पर ओमकार तत्व से थोड़ा जरा वृद्ध था वो। And he said to Kanchi Purnam, my dear Kanchi Purnam, I know you can ask the Lord anything you want. Could you please ask him if when I finish my life, if I go back home, back to Godhead? तो उस वृद्ध वैष्णव ने कांचीपुरम को बोला कि तुम तो भगवान की इतनी सेवा करते हो, उनसे बात भी करते हो, तो मेरा आपको निवेदन है, कृपया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, भगवान से पूछिए कि जब मेरा जीवन अभी समाप्त होगा तो क्या मैं उनके पास वापस जा पाऊंगा।
So Kanchipunam next day, when he was fanning, asked this question. This devotee wants to know if he goes back. What is your answer, my dear Lord? तो कांशीपुन जब अगले दिन सेवा कर रहे थे, भगवान की पंखा कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भगवान, ये जो वैष्णव है, ये इनका ये प्रश्न है, पूछना चाहते हैं कि जीवन समाप्ति के बाद आपके पास जाएंगे, तो क्या उत्तर है आपका भगवान इनके लिए? Varadaraj said, definitely after when he finishes this life, he goes right into the spiritual world. तो भगवान वरदराज ने बोला, बिल्कुल पक्का निश्चित है, जैसे ही उनका जीवन समाप्त होगा, बिल्कुल सीधा आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर जाएंगे. So Kanchipuna went to this devotee and told him the answer to his question. तो कांचीपुन ने जाकर इस भक्त को बताया कि ये भगवान ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है. Devotee was, I think you can understand, he was so happy. तो आप सब समझ सकते हैं कि वो भक्त कितना खुश हुआ. So the next day after this incident, तो ये इस घटना के बाद अगले दिन Kanchipuna was again fanning. तो कांचीपुन फिर से वह पंखा कर रहे थे भगवान को. And Varadaraj said, today you are so silent. तो भगवान वरदराज ने पूछा कि आज तुम बहुत शांत हो. On ordinary days you always ask questions or tell me things, but today you do not open your lips. What is going on in your mind? साधारणता तो तुम मुझसे कुछ ना कुछ प्रश्न करते हो या कुछ ना कुछ बातचीत करते हो, आज तो तुम मुंह ही नहीं खोल रहे. क्या हो गया आज? Kanchipunam looked down and said, nothing. कांचीपुर ने मुंह नीचे किया और बोला कि नहीं, कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं. Varadaraj said, are we not close? You can tell me what is in your mind. तो वरदाज ने कहा कि क्या हम दोनों में आपस में संबंध नहीं है क्या? तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ? I can feel that you have a question. मैं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारे पास कोई प्रश्न है अभी मेरे से पूछने के लिए. Finally, Kanchipuna said, what is with me when my day comes? Will I go back or do I also have to stay? तो आखिरकार कांचीपुर ने भगवान से पूछा कि भगवान कृपया करके मुझे बताइए, मेरे बारे में क्या होगा जब मेरा जीवन समाप्त होगा, तो क्या मैं आपके पास धाम में आ जाऊंगा या यही रहना पड़ेगा मुझे? Varadaraj very strongly said, no, you will not go back to Godhead. वरदराज ने बहुत पक्के तरीके से बोला कि नहीं, तुम वहां नहीं जा पाओगे, तुम यही रहना पड़ेगा. Because you are only serving me, but you don't serve devotees. क्योंकि तुम केवल मेरी सेवा करते हो, तुम भक्तों की सेवा नहीं करते. Whenever you go to any devotee and you want to do some service, the devotee says, no, I cannot accept service from you. You are so advanced and I am not. तो जब भी तुम किसी भक्त के पास जाते हो और सेवा करना चाहते हो, वो बोलता है नहीं, मैं तुमसे सेवा नहीं लूंगा, तुम तो बहुत उन्नत हो, मैं तुमसे सेवा नहीं ले सकता. Only someone who serves my devotees can go back to me, not someone who is not serving. परंतु जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वही मेरे पास आ सकता है, ना कि वो जो मेरे भक्तों की सेवा नहीं करता. The next day, Kanchipunam was missing. अगले दिन कांचीपुन भगवान की सेवा में नहीं आया. The priests in the temple were asking, where's Kanchipunam? It's his fanning seva. तो पुजारी लोग परेशान थे, वो कांचीपुन कहाँ गया, वो भगवान को पंखा करना था, वो कहाँ गया? They looked in the whole town, they looked for him. तो पूरा शहर छान मारा उसके लिए. But there was no sign of Kanchipunam. And no one even knew anything, where he had gone or if he was well or anything. No news about Kanchipunam. तो पूरा शहर ढूंढ लिया, पर कांचीपुन के बारे में कोई खबर नहीं मिली, कोई संकेत नहीं मिला, किसी को पता ही नहीं था वो कहाँ है, कहाँ गया, क्या कर रहा है, स्वस्थ है अस्वस्थ है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था उसके बारे में. Would you like to know what happened with him?
तो आप सब जानना चाहेंगे कि क्या हुआ उसको? In the night, तो रात्रि के समय he had left the town वो शहर छोड़ के चला गया and he had walked for 6 months. और वो 6 महीने तक चलता रहा Finally, he arrived in Sri Rangam. और आखिरकार श्रीरंगम पहुंच गया And there he found some white cloth on the side of the road, and he had dressed in white. और उसको सड़क के किनारे कुछ सफेद कपड़ा मिला और उसने अपने ऊपर लपेट लिया And he had approached a Vaishnava. और उसने एक वैष्णव के पास गया And he said, "You look little old, but you have many cows. I'm an expert cow herdman." तो ये इस वैष्णव के पास जाकर बोला कि तुम थोड़े वृद्ध लगते हो परंतु तुम्हारे पास बहुत सारी गाय हैं और मैं गाय पालन में मैं अच्छा गौ सेवक हूँ I want to serve you and take care of your cows. मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपकी जो गाय हैं उनकी देखभाल करना चाहता हूँ And all I wish is a place to stay and a little cow milk. Finished. और मुझे बदले में बस कुछ नहीं चाहिए थोड़ी सी जगह मिल जाए रहने के लिए और थोड़ा सा गाय का दूध मिल जाए पीने के लिए बस The old devotee, his name was Mahapurnam. He was very happy because his knees were not good. He couldn't go after the cows during the day. तो जो वृद्ध वैष्णव में बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वो वृद्ध था उसके घुटने काम नहीं करते थे वो गाय के पीछे पीछे जा नहीं सकता था For 4 months, Kanchi Purnam, who had disguised himself, was taking care of the cows. तो 4 महीने तक कांचीपूर्ण जो कि अभी छुपा हुआ था अपने आप को छुपाया हुआ था उसने साधारण व्यक्ति की तरह 4 महीने तक इस तरह गाय सेवा करता रहा Then one day there was monsoon. Rain, heavy rain. तो एक दिन बहुत जबरदस्त बारिश हुई Heavy. बहुत तेज बारिश हुई So in the afternoon, Kanchi Purnam brought the cows to the house. There was just next to the house the Goshala, and he was freezing. और शाम के समय कांचीपूर्ण गाय को लेकर आया और गौशाला के पास छोटी सी कुटिया थी वहां पर रह रहा था और बिल्कुल ठिठुर रहा था ठंड के मारे Because his white grihastha cloth had become very wet and was very cold on the body. क्योंकि उसने जो सफेद चादर या कपड़ा अपने पर किया हुआ था वो बहुत गीला हो गया था और पतला भी था तो बहुत ठंड लग रही थी उसको Dhoti, kurta, everything was absolutely wet. तो जो भी उसने धोती कुर्ता सब कुछ पहना था बिल्कुल भीग चुका था वो So Kanchi Purnam put the white cloth for drying. तो कांचीपुर ने जो सफेद वस्त्र है उतार दिया और सूखने के लिए डाल दिया And dressed in his saffron dress. और जो उसका गेहुआ वस्त्र था उसमें फिर वो पहन लिया उसने And then he was chanting. And sometimes he said, "Oh Varadaraj, my heart is missing you." और फिर वहां पर बैठ के जप करने लगा और प्रार्थना करने लगा ओ वरदराज मेरा हृदय मैं आपसे विरह की अनुभूति कर रहा हूँ So meanwhile, Mahapuna, the owner of the cows, he said, let me look after the cow herdman. Maybe he is also wet, after this heavy rainstorm. इसी बीच जो महापूर्ण है जिनकी ये सारी गायें थी उसने जो वृद्ध वैष्णव था उसने सोचा कि मैं भी जाकर देखता हूँ उस ग्वाले का क्या हुआ इतनी बारिश हुई है शायद भीग गया हो देखता हूँ क्या हुआ उसके साथ And he slowly walked to the little window where he could look into the room of his cow herdman. और वहां पे वो जो गौ सेवक था कांचीपुर उसने जिस कुटिया में रह रहा था उसका थोड़ा सा दरवाजा खोला और वहां से देखा झांका अंदर की क्या हो रहा है There he saw it was not this grihastha who had come to serve him, but an exalted sannyasi chanting japa and calling out, "Oh Varadaraj, Pahimam, oh Varadaraj,
Radharaj, Rakshaman. और उसने देखा अंदर झांक कर, तो क्या देखा, अरे वो ग्वाला तो वैसा नहीं था कि उसने सफेद गृहस्था का वस्त्र डाला हो, वो तो साइड पे रखा था। वो तो एक बहुत ही गेहुए वस्त्र में वो सन्यासी था, बहुत वरिष्ठ सन्यासी था, और वो गंभीरता से जप कर रहा था और पुकार रहा था भगवान को, ओ वरदराज रक्षा माम, ओ वरदराज मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो, इस तरह प्रार्थना कर रहा था। Then Mahapuram realized, my God, my servant is a sannyasi. And I heard some news that the famous Kanchi Purnam is missing. Could it be that he is Kanchi Purnam? तो महाप्रभु ने सोचा, अरे भगवान ये क्या हो गया, ये तो बहुत वरिष्ठ सन्यासी है जिसको मैं अपने सेवा में लगाया हुआ था, और मैंने ये भी सुना हुआ था समाचार कि वहां से कांचीपुरम है वो गायब है, अरे ये वही तो नहीं है कहीं। So he went. He said, are you Kanchi Purnam? और गया और उससे पूछा कि क्या आप ही कांचीपुरम हैं? Kanchi Purnam said, why? तो उसने पूछा, क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? Why do you want to know? क्यों पूछना चाहते हो आप, क्यों जानना चाहते हो? Purnam said, oh no, you are Kanchi Purnam and you are serving me. I should be serving you. Rain is coming. I should be serving you. तो महाप्रभु ने बोला कि अरे तुम कांचीपुरम ही हो, मुझे आपकी, तुम मेरी सेवा कर रहे हो, बल्कि मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। Oh no, very big problem. अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अरे I cannot accept your service any longer. Forgive me, I did not know. मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता, माफ कर दो, माफ कर दो, मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। Kanchi Purnam became very sad. Oh, now I have to stop serving a Vaishnava. तो कांचीपुरम बहुत दुखी हुए कि अरे अब मेरे से वैष्णव सेवा छिन जाएगी, वैष्णव सेवा बंद हो जाएगी मेरी। Now my only chance to go back to Godhead is gone. तो अब मेरी जो एकमात्र अवसर था मेरे पास भगवत धाम जाने का, वो भी समाप्त हो गया। I had left Varadaraj in the hope that I would stay unrecognized. मैंने वरदराज को इसीलिए छोड़ा था कि मैं किसी ऐसे स्थान पे जाकर सेवा करूंगा जहाँ मैं बिल्कुल कोई मेरे को पहचानता नहीं है। But I was recognized now and forbidden to continue my service. परंतु मैं यहाँ पर भी पहचाना गया और मेरी सेवा मैं आगे नहीं कर पा रहा। So he went back 6 months walking on foot. And he came into the temple of Varadaraj crying. और फिर 6 महीने पैदल चलने के बाद वापस मंदिर पहुंचा वरदराज के सामने और रो रहा था, क्रंदन कर रहा था। At that moment the deity raised his hand. और उसी समय भगवान ने अपना हाथ उठा लिया। Come Kanchi Purnam, I'm missing your fanning seva. आओ कांचीपुरम, मैं तुम्हारा जो तुम मुझे पंखे की सेवा करते थे वो मैं मिस कर रहा हूँ। Oh, said Kanchi Purnam, my Lord, my life is finished. कांचीपुरम ने कहा कि भगवान मेरा जीवन तो समाप्त हो गया। Why? क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? I was forbidden to serve a Vaishnava. मैं वैष्णव सेवा से वंचित हो गया हूँ। Raj said, no. You served for 4 months. तो वरदराज ने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम तो 4 महीने वैष्णव सेवा करके आए हो। And you want to serve. और तुम वैष्णव सेवा करना चाहते हो। You have understood my lesson. तुम मेरी शिक्षा को समझ गए हो। I have my news for you is definitely after this life we will meet in Vaikuntha. और तुम्हारे लिए समाचार ये है कि तुम्हारे इस जीवन के उपरांत अवश्य हम लोग वैकुंठ में मिलेंगे। अवश्य, अवश्य, अवश्य ऐसा होगा, अवश्य। हरि बोल। So my dear devotees, this is the second point, Vaishnava Seva. तो प्रिय भक्तों, ये दूसरा पॉइंट है विचार करने के लिए, समझने के लिए, वैष्णव सेवा। How can we practically apply this point in our Radha Govinda Mandir in Faridabad? फरीदाबाद में अपने राधा गोविंद मंदिर में हम व्यावहारिक रूप से कैसे इस वैष्णव सेवा को कर सकते हैं?
Bhaktivinoda Thakur says that one of the greatest services you can do for Vaishnava is to be attentive to him. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि किसी वैष्णव की एक बहुत उत्तम सेवा आप कर सकते हैं पूरी तरह से ध्यान देकर उनकी तरफ। What does he need? क्या चाहिए एक वैष्णव को? We have Om Tattva, ओमकार तत्व। we have Omkara Prabhu. What does he need? हमारे ओमकार तत्व प्रभु हैं, उनको वास्तव में चाहिए ही क्या? Is his dhoti okay still? Is his dhoti okay? उनकी धोती ठीक है अभी तो? You first have to become a little bit attentive to a devotee. तो आपको सबसे पहले एक भक्त के प्रति थोड़ा ध्यान देना होगा। You have to become mindful and ask yourself, how is life for them? How are they doing? तो हमें एक भक्त के लिए सोचना होगा कि कैसा है भक्त, उसको क्या चाहिए वास्तव में, कैसा जीवन चल रहा है उसका। And then you have to see how you can give them what they need. और फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस भक्त को जो चाहिए वो आप कैसे उसको दे सकें। When we hear when Chaitanya Mahaprabhu returned from Gaya, he would help devotees, for instance, wash their clothes in the Ganga. तो हम सुनते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु गया गए थे तो रास्ते में कपड़े धो रहा था कोई धोबी घाट पर। At other times, for another devotee, he carried Ganga mat, which was used for cleaning the utensils. It was like the soap which was used in those times. क्षमा कीजिए, जब महाप्रभु जब कोई कपड़े धो रहा था तो उसकी जगह महाप्रभु ने कपड़े धोए, और दूसरी जगह पे कोई व्यक्ति जो है वो साबुन इस्तेमाल कर रहा था तो महाप्रभु ने वो किया। Or he would just help devotees carry things to their home. या फिर महाप्रभु उनकी भक्तों की सहायता करते थे उनके सामान को उनके घर पहुंचाने के लिए। Whatever it is, you need to first become attentive to what are the needs of a devotee. जो भी हो, आपको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि एक भक्त की वास्तव में आवश्यकता क्या है। My dear devotees, you have to build this temple in second time. तो प्रिय भक्तों, इस मंदिर को आपको एक दूसरी बार इसका पुनर्निर्माण करना है। You have built the bricks. आपने ईंटें तो इकट्ठी कर दी हैं। You have brought the marble. आप मार्बल भी लेकर आ गए हैं। You have the most beautiful ceiling in ISKCON. आपको ISKCON की जो सबसे ब्यूटीफुल सीलिंग है वो यहाँ पर है। पूरे ISKCON में सबसे ब्यूटीफुल सीलिंग है यहाँ पर। Yes. The second building is the building of Vaishnav relationships. और जो दूसरी इमारत आपको खड़ी करनी है वो है वैष्णव संबंधों की इमारत। My guess is you are doing already very good in it, because otherwise you would not have been able to make such a beautiful temple in such a short time. मेरा विचार है कि आप लोग उसमें भी अच्छा कर रहे होंगे, वरना इतने कम समय में आप इतना सुंदर मंदिर नहीं बना पाते। But I'm just saying to raise your attention to how important it is. So important that the Lord gave this instruction through His dear devotee Kanchipurnam. परंतु फिर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इस बात के लिए कि कितना आवश्यक है एक भक्त के प्रति सावधान रहना, इतना आवश्यक कि भगवान ने अपने प्रिय भक्त कांचीपुरन के माध्यम से शिक्षा हम सबको दी। The Lord says in the Adi Purana, someone who says he's directly my devotee is not only the person who considers himself the devotee or servant of the devotee, he is a devotee. आदि पुराण में कहा गया है कि भगवान बोलते हैं कि जो अपने आप को मेरा भक्त बोलता है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वास्तव में वही मेरा भक्त है। So what was the first pillar?
तो पहला खंबा क्या था? Namaruchi. Second, Vaishnav Seva. One pillar is remaining. तीसरा खंबा अभी बचा है। Jivadaya. What could that be in our temple in Faridabad? तो हमारे फरीदाबाद, How could we do that in Faridabad? तो हमारे फरीदाबाद मंदिर में हम कैसे जीव दया प्रदर्शित कर सकते हैं? प्रश्न है हमारे लिए। Now is Christmas marathon. तो अभी क्रिसमस मैराथन, We call it like this also, Christmas marathon. गीता मैराथन, Gita Jayanti. Yeah, better. Gita Jayanti marathon is now. So we can see how we can be useful to help that this transcendental knowledge, which will help people to understand about the true path in life, to how to get this to the people. तो हम देख सकते हैं इस गीता जयंती मैराथन में कि हम कैसे उपयोगी बन सकते हैं। ये जो आध्यात्मिक संदेश या ज्ञान है, ये जन समूह तक पहुंचाकर ताकि उनको भी इसका लाभ हो। Also, when you go over the street, you can have some prasad with you, for instance, give prasad to people. और साथ में जब भी आप बाहर जाएं तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रसाद हो सकता है और लोग आपको मिले उनको प्रसाद दीजिए। Or I think just being kind to people. और साथ के साथ लोगों के साथ बस अच्छा बर्ताव करिए, उनके साथ अच्छा रहिए। Just encourage them. बस उनका उत्साह बढ़ाइए। I will end with a wonderful Prabhupada story. मैं विराम दूंगा एक बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद की कथा सुनाकर। Srila Prabhupada was going with his leaders, the GBC men, on a morning walk in Sridham, Mayapur. तो श्रील प्रभुपाद श्रीधाम मायापुर में लीडर्स यानी जीबीसी वर्ग के जो सदस्य हैं उनके साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। And first the various leaders tried to please Prabhupada with the results of the preaching. तो पहले जो भी ये लीडर्स थे इन सब ने प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया, जो भी बड़ा प्रचार कर रहे थे उसके उनको परिणाम सुनाकर। Oh, one said we just published this book in our country. तो एक भक्त ने बताया कि प्रभुपाद जी हमने आपका ये वाला ग्रंथ अपने देश में छपवा दिया है। And another leader said we opened a second temple. और दूसरे ने बताया कि प्रभुपाद हमने अपने देश में दूसरा मंदिर खोल दिया है। So these were all very good news. तो ये सब बहुत अच्छी खबरें थी। But slowly the conversation turned to the difficulties the leaders were experiencing. परंतु थोड़े समय के बाद ही बातचीत करते करते जो लीडर्स कठिनाइयों की अनुभव कर रहे थे उसके ऊपर बातचीत चल पड़ी। And mostly these were difficulties with other devotees. और मुख्यतः ये कठिनाइयां थी इन भक्तों की जो अनुभव कर रहे थे दूसरे भक्तों के साथ। One leader said, this one devotee is really so absolutely uncooperative. तो एक लीडर ने बोला कि जो एक भक्त है हमारे यहाँ बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं करता, सहयोग नहीं करता। And then another leader said, we have this problematic Mataji, her child always screams in the lecture. तो दूसरे ने कहा कि हमारे यहाँ एक माता जी है, इनका बच्चा हमेशा जब भी लेक्चर हो जोर जोर की चिल्लाता है, रोता है। Cannot concentrate. तो कोई ध्यान नहीं लगा पाता लेक्चर के ऊपर। And one news after the other came like this. तो इस तरह एक से एक मुश्किलों की खबरें आ रही थी। अब all of a sudden Prabhupada stopped the morning walk. एकदम से प्रभुपाद ने चलते चलते चलना बंद कर दिया, रुक गए। Put his cane on the ground. और अपनी छड़ी एकदम से जमीन पर गाड़ी। Turned around. पीछे देखा। And said, all of you have come to complain. और प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सब यहाँ पर केवल शिकायत करने आए हैं। Only I have come to encourage. केवल मैं यहाँ पर उत्साह बढ़ाने आया हूँ। It was like a bomb. तो एक बम का विस्फोट हो गया जिस तरह से। Then Prabhupada looked again on his leaders. और प्रभुपाद जी ने एक बार फिर से अपने लीडर्स की तरफ देखा। You all only complain. और बोला कि आप सब केवल शिकायत करते हैं।
only I have come to encourage. केवल मैं यहाँ पर सबको प्रोत्साहित करने आया हूँ. How do we say encourage in the Hindi language? प्रोत्साहित, प्रोत्साहित, Prosahit? उत्साह, सो प्रोत्साह. Protsaha, yes, protsaha. Yes, to encourage, no? I think, my dear devotees, this is a very profound truth. If you can, we spoke about Vaishnav Seva, if you can protsaha, make the other devotee more enthusiastic, encourage him, you give the greatest service because now everything is easy. तो ये सबसे बड़ी सेवा है वैष्णव सेवा कि आप दूसरे भक्तों का उत्साह बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें क्योंकि अब सब इतना आसान हो गया है. Look at our Gopeshwara. He has no time to even put shoes on his feet. He is so enthusiastic. तो हमारे गोपीश्वर को देखिए कि वो इतने उत्साहित हैं कि उनके पास जूते पहनने का भी समय नहीं है. I have studied in Govardhan Parikrama. He was without shoes. तो मैंने गोवर्धन परिक्रमा में देखा कि वो बिना जूतों के थे. I thought, but this is natural. तो मुझे लगा ये तो स्वाभाविक है. But then I saw him on the streets of Faridabad doing the Ratha Yatra without shoes. परंतु फिर फरीदाबाद में जब रथ यात्रा हो रही थी तब देखा तब भी बिना जूतों के थे. I wanted to say, do you need chappals? Are you very poor? तो मुझे लगा क्या बहुत गरीब हो, चप्पल चाहिए क्या आपको? But then I understood, no, he's very enthusiastic. तो फिर मुझे लगा नहीं ये तो बहुत उत्साहित है. And today when I came, I specifically made it a point to look at his feet if he would have shoes this time or no shoes. And he had no shoes. Yeah, we are from Germany. We study everything very carefully. I think they understood. तो इस बार मैं जब आज आया तो मैंने ध्यान से, क्योंकि मैं जर्मनी से हूँ तो हम हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, तो मैंने विशेष रूप से उसके पैरों की ओर देखा कि आज जूते पहने हैं नहीं पहने, तो आज भी नहीं पहने थे. And German quality, you know. And he is happy even without shoes because he does seva. तो ये है कि वो बिना जूतों के भी खुश है क्योंकि सेवा है, सेवा से है. He feels enthusiastic. तो क्योंकि उत्साह आता है. So my point is, if we can help other people and by encouraging them or making them enthusiastic in Krishna consciousness, we do them the greatest service because they will be happy without being dependent on material things. तो पॉइंट ये है कि अगर हम दूसरे भक्तों को उत्साहित कर सकें उनकी सेवाओं में, तो हमने सबसे बड़ी सेवा कर दी, क्योंकि इससे वो भौतिक चीजों से, आकर्षणों से बच जाएंगे. If you are encouraged in your spiritual life, you are above the clouds of illusion or maya. अगर आप उत्साहित फील करते हैं, उत्साहित अनुभव करते हैं अपनी सेवा में, तो आप माया से ऊपर, माया के बादलों से ऊपर निकल जाते हैं. But if you have doubts and many questions, you are often distressed in your life. परंतु यदि आपको डाउट्स होते हैं, शंकाएं, यदि आपको शंकाएं होती हैं तो फिर आप उत्साहित नहीं हो पाते. So it is a great service to help people become enthusiastic, especially devotees. तो ये बहुत बड़ी सेवा है कि भक्तों को उत्साहित रखना, विशेषता सेवा में. But also ordinary people. परंतु न केवल भक्तों को, साधारण लोगों को भी उत्साहित रखना. I will finish with the story of Srila Prabhupada, how he encouraged even ordinary people. तो मैं एक घटना बताऊंगा किस तरह प्रभुपाद जी साधारण जनसमूह को भी उत्साहित रखते थे. It was in America. He would go every morning for a morning walk, as you know, and there were, before one park, there was always the same car. Shishi Radha Govinda ki. The same car with the same depressed man at 7 o'clock in the morning.
You said Prabhupada would go every day in America. On a morning walk, and in this one park where he would take his morning walk, he always saw at 7 o'clock in the same car the same depressed man. तो प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे एक पार्क में और देखते थे हर रोज सुबह 7 बजे प्रभुपाद जी जाते थे मॉर्निंग वॉक के लिए और वहां पर वही लोग हर रोज कुंठित भावना में या डिप्रेशन में या तनाव की स्थिति में हर रोज वही लोग मिलते थे प्रभुपाद जी को सुबह. One morning, Prabhupada had just finished his morning walk. He did not go to his own car. और एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद जब प्रभुपाद ने अपना मॉर्निंग वॉक समाप्त कर लिया प्रभुपाद जी अपनी कार की तरफ नहीं गए. He walked to the car of the depressed man. तो प्रभुपाद जी वो जो दूसरा व्यक्ति था जो हर रोज डिप्रेस दिखता था उसकी कार की तरफ चले गए. And he gestured, he wanted to speak to him. और प्रभुपाद जी ने उसको इशारा किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. So the man put down the window. और वो व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठा था और उसने अपनी खिड़की नीचे कर दी. Prabhupada just smiled at him and said, "Good morning, sir." और प्रभुपाद बस मुस्कुराए उसकी तरफ देखा और बोला गुड मॉर्निंग सर. बस then he went to his own car. और फिर प्रभुपाद बस ये बोल के अपनी कार में चले गए. The next morning, और अगले दिन when he came to the park, जब प्रभुपाद जी उस पार्क में आए, the parking place where the depressed man had always parked his car was empty. वो जो स्थान जहाँ पे उस डिप्रेशन का जो डिप्रेस्ड व्यक्ति था उसकी गाड़ी हर रोज खड़ी होती थी वो खाली थी. वो उसकी गाड़ी नहीं थी वहां पर. See, when Prabhupada had said to the man the day before, "Good morning, sir," जब एक दिन पहले प्रभुपाद जी ने उसको गुड मॉर्निंग सर बोला था, the man's face lit up. उस व्यक्ति का मुंह एकदम से खिल गया. Yes, good morning, he said back. बोला हाँ गुड मॉर्निंग. Yes. He had come out of his depression because someone cared to encourage him. तो वो व्यक्ति अपनी डिप्रेशन से बाहर निकल आया क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसका उत्साह बढ़ाया. So we need to encourage our devotees. तो हमें अपने भक्तों को एनकरेज करना उत्साहित करना आरंभ करना है. So it can be very simple. You can say, "Oh, I just came from Vrindavan, Prabhu. I have something for you from Vrindavan, a mask." तो बहुत सरल हो सकता है कि मैं वृंदावन नाम से आया हूँ मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ चाहे वो मास्क ही क्यों ना हो. Very good, Vrindavan mask वृंदावन मास्क for you. केवल आपके लिए. It can be that simple. इतना सरल हो सकता है. Because you couldn't find anything else in your bag. क्योंकि आपके बैग में कुछ और मिला नहीं आपको. The point is about encouragement. तो पॉइंट विचार देने वाली बात है दूसरों का उत्साह बढ़ाना, दूसरों का ध्यान रखना, trying to lift their consciousness. उनकी चेतना को बढ़ाना. Devotees, भक्तों की भी. Then it's called what? वैष्णव सेवा. Vaishnav Seva. And new people, then it is called जीव दया. You know everything. और नए लोगों की बढ़ाएं तो जीव दया. So we will leave this class with a checklist. तो आप सब इस क्लास में सब जाएंगे तो एक चेकलिस्ट लेकर जाएंगे. We will check every day. How is my नाम रुचि? और आप हर रोज चेक करेंगे मेरी नाम रुचि कैसी है. Oh, I have to improve a little bit. I have to improve a little. क्योंकि मुझे उसे बढ़ाना है, थोड़ा सुधारना है. Next checkpoint. Have I done वैष्णव सेवा. Vaishnav Seva? Oh no, I have not done anything. I have only cooked some chapatis for myself. I better do Vaishnav Seva. दूसरा पॉइंट आपको हर रोज देखना है कि आज मैंने कुछ वैष्णव सेवा की नहीं, आज तो मैंने सिर्फ अपने लिए चपाती बनाई नहीं, मुझे जाके दूसरों के लिए वैष्णव सेवा करनी है. And last checking point. जीव दया. Have I done something for the benefit of others? और तीसरा चेक पॉइंट कि आज क्या मैंने दूसरों के लाभ के लिए कुछ किया. I still need to do Vaishnav Seva. Naam I have done almost, it's not 100% perfect. Little needs to be done. But Vaishnav Seva, I thought of
giving Gopeshwara new shoes. तो मैंने नाम तो आज कर लिया है थोड़ा बहुत, पर वैष्णव सेवा तो मैंने सोचा आज गोपेश्वर कुछ नए जूते दे देता हूँ. Maybe little donation for shoes. कुछ उसको दान देता हूँ जूते खरीदने के लिए. Vaishnav Seva. ये वैष्णव सेवा है. And Jivadaya, our day started bad when we drove on the car from Vrindavan. We hit a dog. This was the opposite of Jivadaya. तो हमारा दिन थोड़ा दुर्घटना से आरंभ हुआ जब हम वृंदावन से गाड़ी से निकले यहाँ के लिए, तो रास्ते में कुत्ते को लग गई गाड़ी, तो जीव जाए का उल्टा हो गया. He is all right. He was not no bleeding, no hurt, but that was not good. तो वैसे वो ठीक है, उसको कोई खून वगैरह नहीं निकला, परंतु फिर भी अच्छा तो नहीं था ये. Maybe I get some prasadam when I go to the Radha Pathashara. No, I beg prasadam here, and then maybe on the street, when we stop with the car and there's a beggar, I give a box of prasadam. Maybe, yeah, that's a good plan. तो एक जीवदया का अच्छा विचार है कि अभी जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ यहाँ से प्रसाद देकर जाएंगे, और रास्ते में कहीं भी गाड़ी रुकेगी, कोई भिखारी होगा, उसको प्रसाद दे देंगे. Every day, check. And then your life is very good. तो हर रोज आप लोग अपनी चेकलिस्ट में चेक करिए और फिर आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा. Can you remember this? क्या आप ये याद रख सकते हैं 3 चीजें? Easy. सरल हैं. Yeah, easy. How are you doing today on the 3 points? Yeah, but how are you doing? Is it going well? Or not? आपके तीनों पॉइंट कैसे चल रहे हैं आज के? Yeah. Not good round. So there we have to improve on that point. Yes. This is what it means. Don't become lazy in your Krishna conscious advancement. तो अपनी कृष्ण भक्ति की प्रगति में आलसी मत बनिए. Otherwise you suffer. वरना आप कुंठित रहेंगे. Hare Krishna. Hare Krishna. Finished. हो गया. Lecture हो गया. Thank you. Hare Krishna. So Vaishnava Seva is okay now for me. Now I have to do just, please you give me prasadam later, for box prasadam for people on the street. I'm serious, although it is a little humorous, but the point is very serious. तो हालांकि देखने में हंसी मजाक लग रहा होगा, पर ये पॉइंट बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है. आज के मेरे 2 पॉइंट हो गए. नाम रुचि, मैंने नाम जप कर लिया. वैष्णव सेवा कर दी. अब कृपया करके मुझे प्रसाद दीजिए ताकि रास्ते में किसी को प्रसाद दूंगा. उससे 3रा पॉइंट हो जाएगा. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. ठीक है. You have one time is enough. Okay, so we need to go now. Who will give me a little prasadam box? Yes, ma'am. Yes, please do now. We need to go. Our next station is Greater Kailash Part 3. Yeah. Ajit Govind Yoga Center, right? Yeah. Panchashila, no? Murari ke babu. Okay. प्रसाद. Good. नाम गोविंद को
Krishna. I'm sorry, everyone is so silent. We have to go now, no? His Holiness Sachidanand Swami Maharaj Ji Ki. His Holiness Sachidanand Swami Maharaj Ki. His Holiness Sachidanand Swami Maharaj Ji Ki. Srila Prabhupada Ki. Samvet Gaur Bhakta Vrinda Ki. Nitai Gaur Premanande. Sorry. Thank you. Hare Krishna. तो प्लीज एक मिनट के सब लोग बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए, महाराज बैठे हैं, सब बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। तो हम लोग अपने हृदय से महाराज श्री का बहुत 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 अधिक धन्यवाद देना चाहेंगे कि महाराज ने यहाँ पर आकर हम सबको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। और भी है, और भी है, ठीक है। तो हम महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। महाराज, we are extremely grateful and blessed to have your wonderful and most auspicious presence, and we said that once you come here, will be blessed by words of wisdom, and definitely these are transcendental words of wisdom. I am sure by your auspicious presence and hearing from you, it can bring transformation in our hearts. So we beg at your lotus feet that we get empowered to apply these three most valuable and precious instructions that you have given: Name Ruchi, Jiva Daya, and Vaishnava Seva. Hare Krishna, it must be very practical, not just a philosophical concept. You have to see each day, no? और महाराज कह रहे हैं कि ये बहुत व्यावहारिक होना चाहिए, हर रोज हमें देखना है कि हमें तीन चीजें कर रहे हैं नहीं कर रहे। And I think some of us have some work to do today still, no? और हमारे पास अभी भी तीन चीजों में से हम में से सबके पास कुछ ना कुछ तो होगा अभी आगे करने के लिए। हाँ जी, सही बात है, इन तीन में से कुछ करने के लिए। Yes, Maharaj. All right. I'm very sorry. I have to be so impolite, but yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Just one more second. So Maharaj, we'll all be ready to report to you next year when you come to India and on you to Vrindavan. So we'll beg right now at your lotus feet that on your way to Vrindavan, please stop over here, and then we'll report to you on the practical applications that we did on these three things. And I will analyze you very carefully. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी के। तो महाराज जी का बहुत 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 विशेष धन्यवाद करेंगे। हृदय से हरे कृष्ण हम पुकार कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलिनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो एक वैष्णव सेवा का वो हो गया है। पूजा शर्मा माता जी, पूजा शर्मा माता जी हैं। कहाँ पर है पूजा शर्मा माता जी? उन्होंने आज का प्रसाद भक्तों के लिए स्पॉन्सर किया है। तो